سلطان راہی کی رحلت کے بعد فلم ساز اور ہدایت کار نے شان سے بھی 15-16 سال سلطان راہی ہی خریدا ہے۔ اچھا جی، آج ہم نے اپنی پاکستان فلم انڈسٹری کے سٹارز کے حوالے سے جس ہم نے اپنے ستارے کی بات کرنی ہے، اسے ستارہ نہیں کہنا چاہیے، فلم انڈسٹری کا سورج کہنا چاہیے۔ فن کا سلطان سلطان راہی۔ تو انہوں نے ٹھیکیدار ہے، کوئی شراب پیے، ککڑ لڑائے یا جوا کھیڑے، کون پیاس میں تیرے خون نال بجھاواں گا۔ اینا سمجھ لے کہ تیرے سامنے رستم نہیں، تیری موت جبرو دی ماں ہے جدا نا سن کے وڈے وڈے بدماشاں دے پیراں پہلو زمین نکل۔ کیوں بری کیا کہ عورت ذات اعتبار نہیں کردا پتر ہے، جے کسی عورت نے تیرے کو تیرے لالے دا پیار کھو لیتا تو میں چیندی جانے مر جا۔ سلطان راہی صاحب کے ساتھ میری کوئی 75 فلمیں میرے ساتھ کام کر کے نا، جب شارٹ ہوتا تھا مجھے جپی ڈالتے تھے، مجھے گل بابا کہتے تھے۔ گل بابا، اچھا، گل بابا کے ساتھ کام کر کے مزہ آتا ہے مجھے۔ یہ سانو جگادا ہے منڈا، جگاندہ ہے، اور بڑے مطلب ٹائمنگ ان کی بہت اچھی تھی۔ رات 3 بجے تک ہم شوٹنگ کر رہے ہیں تو صبح 7 بجے پہنچنا ہے پنڈ ہرائیاں، وہ 6:45 بجے پہنچے ہوئے، پنکچول تھے، بہت پنکچول۔ ایک آواز آتی تھی گل بابا آ گیا، میں نے کہا جی میں بیٹھا ہوں ادھر، کہتے یار یہ کتوں آ گیا ہے، عذاب بن گیا 8:30، میرے تو ہی پہلے آ جانا۔ لیکن واز آلسو ویری پنکچول۔ جو آپ اس کی کوئی مثال نہیں، جس طرح کے رولز کیا کرتے تھے اس کا آلٹرنیٹ کوئی نہیں تھا۔ لیکن میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ جی یہ ایک ٹائپ کے رولز کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں نے کچھ فلمیں ان کی وہ بھی دیکھی ہیں جو بلیک اینڈ وائٹ دور کی فلمیں تھیں، اس میں انہوں نے جو کام کیا تھا ان کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی وہ ایک ورسٹائل آرٹسٹ ہے۔ جوان پیر دی گت اپنے چمچا نے ہاتھ پڑا دیتی۔ تو چپ کر لی، ادھر اے نہ ہوے مینوں اپنی کوڑی دا منہ تیرے لو نہ لگا۔ راہی کا سٹائل اور اس کی گفتگو جو تھی تمام کی تمام مجھے جو ہے وہ ہالی ووڈ کے جو سٹار سے ان سے ملتی جلتی لگتی۔ میں سوچتا تھا کہ یہ اگر وہاں ہوتا تو کیسا ہوتا۔ سلطان راہی سے بڑا کوئی ایکٹر پاکستان میں نہ پیدا ہوا ہے، نہ کوئی آگے ایسا نظر آ رہا ہے۔ جو مقام اس بندے نے فلم ٹریڈ میں حاصل کیا تھا شاید اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایکچولی ہم لوگ دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں تھے، اور بہت کچھ تھے۔ وہ پتہ نہیں کیا شخصیت تھی وہ۔ ایک آدھ فلم میں جب میں نے شروع میں اس کے ساتھ کام کیا ہے تو وہ مرحوم میں جہاں بیٹھتی تھی اوائڈ کر جاتا تھا، مطلب اٹھ جاتا تھا وہاں سے۔ مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ بہرحال میں نے کافی دفعہ پوچھا، ٹال گیا۔ پھر میں سیریس ہو گئی، میں نے کہا آگا پھر یہی ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ کام نہیں کروں۔ اللہ ہو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ کہنے لگا کہ آپ جب ہیروئن تھی تو ہم ایکسٹراز کے لیے کام کرتے تھے، تو باہر آپ کے جو بھی جگہ ہوتی تھی وہاں کھڑے رہتے، تو آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کیسے سکتا ہوں۔ اللہ یہ وہ انسان تھا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جب میں کم بیک میں نے کیا ہے، ماشاءاللہ اس کا بوم پیریڈ شروع ہو گیا ہوا تھا۔ میں نے اسے یہی کہا کہ وہ پیریڈ آپ نے دیکھا، اب آپ کا پیریڈ دیکھنے میں آئی ہوں۔ اللہ، ہاتھ پکڑ لو، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ اور پھر اللہ پاک نے اتنی کرم نوازی کی کہ جس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ لیکن یہ ضرور کہوں گی سلطان راہی ایک ہی تھا اور ایک ہی رہے گا۔ رب دی سوچ موت آوے گی تے پچھ کے آوے گی۔ سلطان راہی صاحب مجھ سے بہت سینئر تھے، وہ اسٹیبلشڈ ہو چکے تھے۔ راہی صاحب کے ساتھ آمنا سامنا جب ہوا، ظاہر ہے دو آرٹسٹ جب کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو پرفارمنس میں ایک دوسرے کی پر سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سین اچھا ہو۔ تو راہی صاحب لاؤڈ بولتے تھے، اور میں اگر ان سے بھی لاؤڈ بولتا تو میں ہوٹ ہو جاتا، کیونکہ وہ تو
लाउडिज्म में अपनी ऑडियंस क्रिएट कर चुके थे, राइट, सारे पाकिस्तान में। बिल्कुल। फिर मैंने एक तरीका इख्तियार किया कि वो लाउड बोल रहे हैं तो मैं बिल्कुल नीचे के सुरों में, फर्ज कीजिए वो कहते हैं तो मैं मुड़ के देख के स्माइल दे के नवाया सोनिया तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा ये अंदाज। अच्छा। और फिर मैंने अपने डायलॉग्स में रेडियो को इस्तेमाल किया, उसमें क्लियरिटी, और चूँकि पंजाबी मेरी मदर टंग नहीं तो उसको ज़रा संभल के बोलना। मैं राही साहब को, अल्लाह को गरीक़ रहमत करे, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। वो इसलिए कि वो मुझे क्यों ऐसा देते थे, ये लाउड वाला क्यों देते थे, मुझे मौका मिल जाता था कि मैं वो नीचे सुरों में बोलता था। तो मैं तमाम तर वो जो क्लैप है ना, वो मैं अपनी नहीं समझता, वो राही साहब की समझता। सुल्तान राही साहब एक बहुत ही अजीम फनकार थे, इस मुल्क की पहचान थे, और मुझे सारी ज़िंदगी एक बात का अफसोस रहेगा कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ काम करती। आज जब मैं उनके बारे में सुनती हूँ, स्टूडियो के टेक्नीशियंस से, स्टूडियोज़ के डायरेक्टर्स से, तो मैं सीरियसली उनको बहुत मिस करती हूँ। मैंने उनकी बहुत सारी पिक्चर्स देखी हैं, लेकिन जो मुझे मेरी जो एक फेवरेट पिक्चर है मौला जट, जिसके डायरेक्टर यूनुस मलिक थे, वो मुझे बहुत पसंद है। और मैं अक्सर जब भी सुल्तान राही साहब को देखना चाहती हूँ, मैं वो पिक्चर लगाती हूँ और उनको मैं स्क्रीन पर देखती हूँ और उनके लिए दुआ करती हूँ। हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी एक्टर थे, और सब जानते हैं कि उन्होंने हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक नया ट्रेंड दिया था। ही वॉज अ वेरी स्पॉन्टेनियस एक्टर, बड़े एब्रप्ट किस्म की उनकी परफॉर्मेंस थी। दैट्स व्हाई आई लाइक हिम सो मच। और उनकी कुछ मूवीज़ मैंने देखी थी जिनमें बहुत बोल्ड किस्म के एक्टर थे वो, जिनको पर्सनली आई लाइक हिम सो मच। एंड मेरे लिए तो ऑनर की बात ये है कि मैं इंडस्ट्री में हूँ और उनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर है, जो कि हम सब आर्टिस्टों के लिए एक एजाज़ की बात है। उनके गाने जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देते हैं। देखिए, दैट्स वेरी यूनिक स्टाइल के एक हीरो है। नॉर्मली आज के कल के दौर में और पहले भी नॉर्मली हीरोज़ भी हीरोइंस के साथ डांस किया करते थे, लेकिन सुल्तान राही साहब का एक स्टाइल था कि वो बस खड़े होकर एक्सप्रेशंस दिया करते थे, हीरोइन को सिर्फ देखा करते थे और उनकी हीरोइन उनके आगे डांस किया करती थी। जहद मुसलसल, हिम्मत, उम्मीद और कामयाबी, इन चार अनासर से वजूद में आने वाले फ़नकार को आज दुनिया सुल्तान राही के नाम से जानती है। राही साहब जिसने एक मामूली एक्स्ट्रा से अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ किया और फिर एक रोज़ वो एक ऐसा अदाकार, एक ऐसा हीरो बनकर फिल्मी दुनिया के आसमान पर चमका जिसकी चमकता हयात कायम रही। फ़न का सुल्तान सुल्तान राही, वो आज भी अपने सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों चाहने वालों की याद और दिलों में ज़िंदा है। अस्सलामु अलैकुम, मैं फिल्म स्टार मुमताज़ इस मौके पर यही कहूँगी कि पंजाबी बॉक्स ऑफिस में अब तक कोई और सुल्तान राही नहीं आया और शायद अब कभी आएगा भी नहीं। उनके साथ बतौर आर्टिस्ट और हीरोइन मैंने बहुत सी फिल्मों में काम किया। मेरी जोड़ी एक ज़माने में उनके साथ पंजाबी फिल्मों में इस कदर हिट हुई कि उर्दू फिल्मों में भी मुझे उनके साथ एज हीरोइन कास्ट करने लगे। उनके साथ काम करते हुए हमें बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि हम इतने बड़े और बेहद मसरूफ़ आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। एक आम से अवामी इंसान जो यूनिट के हर आम व ख़ास आदमी से इस तरह मिलता कि उसे अपनाहियत का एहसास होता। वो एक सखी, गरीब परवर इंसान थे। हर एक के दुख को
अपना दुख समझना। फिल्मों में एक्स्ट्रा के तौर पर काम करने वाले आर्टिस्टों का वो बेहद ख्याल करते थे। अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो गरीब अदाकारों, यतीमों, बेवाओं को इस तरह से देते थे कि किसी को कानो कान खबर ना होती। कौन विंगी अथरी ते पिंडा फड़का लगदा है ऐ शिकार कुछ देर होर दो। जबान कौड़ी, देन गंदा, लगदा थाने दा फेरा और लवाएंगे। फेरा एक कोई लगेगा पर थाने का नहीं, कब्रिस्तान का। एक कोई फेरे च तेरा सारा टब्बर उठ चुका दे। अपना ना दसनी, अपनी नस्ल दस दे। जड़ा नस्ल पूछे उन्होंने मैं नस पा देना वनी। ए नस में तेरी भैन दे नस विच पा के अपने वीर दे लगे हुए पिंडे ते उन्हां निशाना दा हिसाब लेने जिन्नू तू थाने च छड्ड आया। अच्छा, आपने सुल्तान राही साहब के साथ बहुत काम किया, उनके बारे में कोई चीज़ जो आपकी यादगार या उनकी पर्सनालिटी की कोई क्या ऐसी चीज़ थी कि उन्होंने अपने ज़माने में ऐसा राज किया और आज भी उनका जो एक मकाम है और वो लोगों के दिलों में रहते। मैंने सुनने में आया कि वो 5 वक्त के नमाजी थे और असल ज़िंदगी में अपने जो कैरेक्टर जिस तरह प्ले करते थे, एग्रेसिव और वो सारा, उससे बड़े मुख्तलिफ और नरम इंसान थे। जी जी बिल्कुल। देखिए वो तो एक रिलीजियस की एक अलग लाइन है, वो तो फ़र्ज़ है हर मुसलमान पे नमाज। और लेकिन बात ये है कि राही साहब बसाते ख़ुद एक बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छे दिल का मालिक था। कई फिल्में मैं आपको बताऊं, अली ज़फ़र उन्होंने ऐसे कहा, कोई एडवांस लिए बगैर सब उन्होंने कहा आप फिल्म शुरू करें, और उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं लिया और ऐसे काम कर। जब फिल्म हिट हुई तो वो उन्होंने ख़ुद ही ला के रईस साहब के आगे। रईस साहब इस तरह के महान इंसान थे और एक अच्छे आदमी थे और उनका दिल भी बहुत अच्छा था, अपने जूनियर्स को बहुत इज़्ज़त दी। अच्छा, कोई उनके साथ मिसहैप कर ले, कोई जेलिसी में आके कोई गलत बात भी कर ली तो उनके मुंह में एक ही लफ्ज़ होता था, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अल्लाह वाले आदमी, तभी अल्लाह वाले आदमी, उनको जवाल आया ही नहीं। चंद ऐसे आर्टिस्ट हमारे इंडस्ट्री में आए कि जिनको जवाल नहीं। और मैं आपको बताऊं, मेरा बिलीव है इस चीज़ पे, जवाल नहीं होता, इंसान के अपने इख्तियार में होता है कि उसका एटीट्यूड कैसा है, उनका बिहेव कैसा है लोगों के साथ, अवाम के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली अगर सही नहीं है तो जवाल आ जाता है, अगर सही है तो जवाल कभी नहीं। कई ऐसे फनकार आर्टिस्ट गुजरे जिनको जवाल नहीं है। मौले नू मौलाना मारे ते मौला नहीं मार सकता पैना, रब दे बाद उन्हें सिर्फ मैं मार सकता। किधरे भुलेखे च नूरी नत नू पेच के ओदा खाक ना करा लेनी, कली रह जाए।